بول خدا بندے بول، میں سننے آیا۔ اے خداوند آج تو بول، آج تو کلام کر۔ اے خداوند تیرے کلام میں لکھ دیا گیا ہے کہ لفظ مار دیتے ہیں لیکن روح زندہ کرے۔ آج اے خداوند روح زندہ کرے۔ آج اے خداوند تربیت کا کام ہو، نصیحت کا کام ہو، تسلی کا کام ہو، اور تیرا نام جلال پائے۔ میں اپنے آپ کو پیچھے کرتی ہوں، تجھے آگے کرتی ہوں۔ اے خداوند تیرے پاک مذبح پر کھڑی ہوں، تو چاہتی ہوں خداوند کہ آج تیرا کلام موتیوں کی طرح بکھرے، موتیوں کی طرح سمیٹا جائے اور زندگیوں میں محفوظ ہو جائے۔ تیرا شکر ہو تو نے سن لی، مسیح یسوع کے نام۔ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہے۔ سب ٹھیک ہے؟ جو ٹھیک ہے وہ ہاتھ ہلا کے جواب دیں۔ جو ذرا ٹھیک ہے وہ ذرا ہاتھ ہلا کے جواب دیں۔ شکر ہے خداوند کا کہ ہم ٹھیک ہیں، اور ہمیں یہ سوچ کے بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہم یسوع مسیح کو ماننے والے ہیں، جس کی قبر آج بھی خالی ہے، جو زندہ ہے، اور جب اسے پکارا جاتا ہے وہ اپنے طالبوں کے درمیان نہ صرف اترتا ہے بلکہ ان کو بدلہ دیتا ہے، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھ دیا گیا ہے کہ خداوند کے پاس آنے والے کو یہ ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ وہ زندہ ہے اور ہمیں بدلہ بھی دیتا ہے۔ جی میرے ساتھ دیکھیے گا، افسیوں 5واں باب اور اس کی 25ویں آیت۔ اے شوہروں اپنی بیویوں سے محبت رکھو۔ کیا رکھو جی؟ محبت رکھو، جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالے کر دیا۔ مسیح نے کلیسیا سے کیسی محبت رکھی ہے جی؟ کہ اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیا۔ کلیسیا جو ہے یہ مسیح یسوع کی دلہن ہے، کلیسیا جو ہے یہ مسیح یسوع کی بیوی ہے، اور اس نے اپنی بیوی سے اتنی محبت رکھی ہے، اتنا پیار کیا ہے کہ اس نے اس کو لہو ہی سے رنگ دیا ہے، اور اس کے ہر داغ کو، اس کی ہر جرمی کو ختم کر دیا ہے۔ یسوع مسیح نے ایسی محبت رکھی ہے اپنی بیوی سے، اور بائبل مقدس آج کے شوہر کو بھی کیا فرماتی ہے جو ایماندار ہے؟ اے بیویوں اے شوہروں اپنی بیویوں سے محبت رکھو۔ اور محبت کا لیول، جب بھی آپ محبت کریں تو محبت کا لیول مسیح یسوع جیسا ضرور ہو۔ اگر مسیح یسوع جیسا نہیں بھی ہو تو چلیں اس کے قریب تر تو ہونا چاہیے، اگر نہیں ہو تو اس کے قریب تر تو ہونا چاہیے۔ کوشش میں سستی نہ کرو، اور کہتے ہیں کوشش کرنے والے کی کبھی ہار نہیں ہوتی۔ جب خداوند نے ابراہیم سے فرمایا کہ چل اور کامل ہو، کیا انسان کامل ہو سکتا ہے؟ انسان اپنی ذات میں کامل نہیں ہو سکتا، لیکن میں جب بھی اس حوالے کو پڑھتی تو میں سوچتی ہوں کامل ہو نہیں سکتا، کامل ہونے کی کوشش میں لگے رہنا بڑی بات ہے۔ تو ہم اگر یسوع مسیح جیسی محبت نہیں رکھ سکتے تو کم از کم اس سے کم کا درجہ تو ہونا چاہیے۔ جی نیکسٹ ریفرنس پڑھیں گے، افسیوں 5واں باب اس کی 28ویں آیت۔ میں آپ کے لیے پڑھوں گی۔ اسی طرح شوہروں کو لازم ہے کہ اپنی بیویوں سے اپنے بدن کی مانند محبت رکھیں۔ کیسے رکھیں جی؟ اپنے بدن کی مانند محبت رکھیں۔ کیا کسی نے اپنے بدن کو گالیاں دی ہیں؟ تو تے ہے ہی انج دا، تو تے ہے ہی انج دا، تو تے کھوتا جائے۔ عورتوں کو کہا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا؟ تو کھوتی ہیں، ماں کرو کچھ سکھ کے نہیں ہے، کہا جاتا ہے تو تے ہے ہی انج۔ کیا کسی نے اپنے بدن کو کبھی کھوتا گیا؟ کہا ہے کھوتا ہے، کبھی کہا ہے لکھا ہے؟ اسی طرح شوہروں کو لازم ہے، لازم کا لفظ ہے، لفظوں پہ غور کریں، ضروری ہے کہ وہ کیا کریں جی؟ اپنی بیوی سے اپنے بدن کی مان۔ ایک جون صاحب اکثر بات کرتے ہیں، ایک بندہ جو تھا اپنی بیوی کو مارتا تھا، تو جون صاحب نے اس کو سمجھایا جی کہ آپ اپنی بیوی کو کیوں مارتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جی میں تو اپنے بدن کو مارتا کوٹتا ہوں۔ یہ سچی بات ہے، یہ لکھی پڑھی بات نہیں آپ سے کی جاتی۔
हमने उसको फेस टू फेस समझाया जी कि आप अपनी बीवी को मारा ना करें, तो उसने कहा मैं अपने बदन को मारता कूटता हूँ। तो अगर तुम्हें उसको मारने का इतना शौक है तो पहले अपने बदन को मारो, फिर उसकी तरफ जाओ। आगे है, जो अपनी बीवी से मोहब्बत रखता है वो अपने आप से मोहब्बत रखता है। कैसी प्यारी बात है, जो अपनी बीवी से मोहब्बत रखता है वो किससे मोहब्बत रख रहा है जी? अपने आप से। क्या आपने अपने जिस्म से कभी ज्यादती की? कभी की हो? आपने जिस्म से कभी ज्यादती की है? खाने में, पीने में, पहनने में, सोने में कभी की हो? नहीं की। एक और सच्ची बात आपको बताती है, एक मियाँ बीवी जब भी वो खाना खाने बैठते थे, घर में कुछ अच्छा बनाया तो वो शोहर जो होता था वो जल्दी जल्दी खा लेता था। उसकी स्पीड तेज होगी खाने में, बीवी की कम होगी। तो वो जब भी जल्दी खाता तो वो साथ वाला क्या कहता? वो कहता कि भाई जितनी हिम्मतें, जितनी हिम्मतें और नहीं खाएगा। हालांकि अगर आपके बदन आपकी बीवी है तो आपको उसका ख्याल रखना चाहिए, आपको उसका ध्यान रखना चाहिए। सालन डालते हुए इसका ख्याल रखें कि क्या उसके लिए भी है जी, क्योंकि कभी किसी ने अपने जिस्म से दुश्मनी नहीं की, बल्कि उसको पालता और परवरिश करता है, जैसे कि मसीह कलीसिया को जी क्या करता है? उसको पालता है और उसकी परवरिश करता है। उसको गालियां नहीं देता, उसको ठुड्डों से मारता नहीं है, बल्कि उसको पालता है और उसकी परवरिश करता है। वो उसका ध्यान रखता है, वो उसका ख्याल रखता है। सुबह उठते ही उसका नाश्ता गालियों से नहीं करवाता, रात को सोते हुए उसको लान तान नहीं करता। मैं कहती हूँ, लोग कहते हैं कि औरत जो है ये दूसरे दर्जे की मखलूक है। कहा जाता है औरत जो है ये दूसरे दर्जे की मखलूक है। जब यीशु मसीह ने इसकी पस्तहाली पे नजर की है, जब मरियम का गीत हम देखते हैं तो मरियम कहती है कि उसने मेरी पस्तहाली पर नजर की। यीशु मसीह ने उसकी पस्तहाली पर नजर की है। अगर उसने उसकी पस्तहाली पर नजर की है, अगर उसने उसको घोड़े से उठाया है और उसे आसमानी मुकामों पे बिठाया है, तो कौन उसको गालियां दे सकता है? कौन उसको लान तान कर सकता है? कौन उसको बुरा भला कह सकता है? यीशु मसीह ने उससे प्यार किया। जब यीशु मसीह के पास एक ज़नाख़ोर औरत को जो ऐब फेल में गुनाह में पकड़ी गई, तो क्या यीशु मसीह ने इस पर कोई फतवा जारी किया? कोई फतवा जारी किया हो? जब वो औरत जो 5 कर चुकी थी और जिसके पास वो रह रही थी वो भी उसका नहीं था, तो यीशु मसीह ने उसे कुछ कहा? यीशु मसीह ने उसको भी कहा, अगर तुम मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। खुदा बाप औरत में इंटरेस्टेड है, वो मोहब्बत करता है इससे। अगर वो मोहब्बत करता है तो ये जिम्मेदारी उसके बाद शोहर को दी गई है कि वो उससे मोहब्बत करे, वो उसका ख्याल रखे। देखिएगा मेरे साथ कुर्सी 3 बाब जी 19वीं आयत, ऐ शोहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो और उनसे तलख मिजाजी से पेश ना हो, तलख मिजाजी ना करो। अगर आप 8 घंटे की ड्यूटी करके आए हैं तो जितनी देर आप बाहर रहे हैं वो घर में काम करती रहिए, नहीं करती रही। आपकी ड्यूटी 8 घंटे के बाद खत्म हो जाती है, आपकी ड्यूटी 12 घंटे के बाद खत्म हो जाती है, लेकिन एक औरत की ड्यूटी जो है वो खत्म नहीं होती। वो उसने सुबह सबसे पहले उठना है और सबसे आखिर पे बिस्तर पे जाना है और काम करते रहना है। उसने बच्चों को पैदा करना है, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना है। हर काम की एक लंबी लिस्ट है। आपके पास ये लिस्ट है, मैंने सुबह 8 बजे ड्यूटी पे जाना है, शाम को 5 बजे घर आ जाना है। लेकिन आपकी जब आप आ जाते हैं, आप मोबाइल पे बिजी हैं, आप अपने लैपटॉप पे बिजी हैं, आपको बैठे हुए चाय सर्व हो रही है, आपको बैठे हुए ग्रीन टी मिल रही है, आपको बैठे हुए टाइम पर खाना मिल रहा है, ये दूसरे दर्जे की औरत आपको दे रही है, दूसरे दर्जे की मखलूक आपको दे रही है। सब कुछ टाइम पर प्रोवाइड किया जा रहा है, आपको टाइम पर कपड़े। आपने कभी इस चीज पे गौर किया है कि आपके कपड़ों पर एक भी दाग नहीं होता? ये दाग किसकी वजह से नहीं होता? एक औरत की वजह से। आपको कॉटन के माया वाले कपड़े प्रेस मिलते हैं, ये किसकी वजह से है?
एक औरत की वजह से। आपको अपनी अलमारी में 4-4 सूट हैंग इस्त्री हुए मिलते हैं, ये किसकी वजह से है? एक औरत की वजह से। और आप उसकी कहते हो अरे तू कर नहीं की घर च, मैं तो ड्यूटी करके आया हुआ, मैं तो दिहाड़ी ला के आया हुआ, तू की करनी है? कभी एक दिन ना आप ना उसको अपनी ड्यूटी पे भेजें और आप घर का काम करें, जिसमें रूटीन के काम है कपड़े धोने, कपड़े इस्त्री करने, ठीक है, 3 टाइम का फ्रेश खाना, 2-3 टाइम की चाय, बच्चों का नहलाना धोना, हर चीज जो है शामिल है उसमें। जी आप मुत्तफिक कैसे? आपको होना पड़ेगा, ये मुत्तफिक है, आपको होना पड़ेगा। ये एक तरतीब है कामों की जो एक औरत करती है। और फिर लोग कहते हैं जी औरत को मोहब्बत की जरूरत होती है। भाई औरत को मोहब्बत की जरूरत भी होती है, लेकिन इसके साथ उसको इज्जत की भी जरूरत होती है। मोहब्बत तो आप उस कुत्ते से भी कर लेंगे जो आपने घर में रखा है, नहीं करते? जब आप उसके खाने का, पीने का, नहाने का, धोने का ख्याल रखते हैं तो इसका मतलब है आप उस कुत्ते से मोहब्बत कर रहे हैं। लेकिन औरत को साथ इज्जत भी चाहिए, खुद भी उसकी इज्जत करें और अपने खानदान के लोगों को भी कहें कि वो उसकी इज्जत करें। जब आप उसकी इंसर्ट करेंगे दूसरे को उसकी इंसर्ट करेंगे। और सबसे पहले आपके बेटे इंसर्ट करना सीखेंगे। वो सीखेंगे कि माँ की इज्जत नहीं होती। अब्बा नहीं करना मैं की करा, अब्बा भी तो अम्मी ने एवं बोलता है ना, ए बंदा भी तो अम्मी ने एवं बोलता है ना, तो मैं भी तो बोल ही सकना। ਇਹਦਾ मतलब है ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤਨਾਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ मैं बोलना वा तो तू ही बोल सकना है, तू ही अगर बदतमीजी कर सकता है। मैंने देखे छोटे छोटे बच्चे माँ को जूतियां से मार रहे होते हैं, ठीक है? तो ये है तरबियत। आगे जी एक और हवाला देखेंगे, पहला पतरस 3 बाब उसकी 7वीं आयत। ऐ शोहरों तुम अपनी बीवी के साथ अक्लमंदी से बसर करो। कैसे बसर करनी है जी? अक्लमंदी से। कि गुस्से से, मार धाड़ से? हर टाइम यही जताते रहना मैं काम पे जाता हूँ जी, मैं काम पे जाता हूँ। और अगर मैंने देखा है औरत को कहा जाए नहीं जी आपकी औरत बड़ी अच्छी है, वो आपको फ्रेश आटे की रोटी बना के देती है, आपकी औरत बहुत अच्छी है, वो आपको दिन में आपने 2 जगह भी कहीं जाना हो तो आपको कपड़े, वो कहते हैं उनका काम सी मेरी माँ भी कर दी सी। तो कहोगा नहीं अगर तुसी ड्यूटी कर दे तो ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ भी ड्यूटी करता होगा। ऐसा नहीं है। अगर आप कहते हैं मैं ड्यूटी करता हूं तो आपका अब्बू जो है, अब्बू जान थे, वो भी ड्यूटी करते रहे हैं। लेकिन इज्जत लाजमी उनसर है, मोहब्बत लाजमी उनसर है। जी आगे देखेंगे, और औरत को नाजुक ज़रफ़ जानकर इसकी इज्जत करो। यूं समझो कि हम दोनों जिंदगी की नेमत के वारिस हैं, ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं। नाजुक ज़रफ़ जान के क्या करें? जिसकी इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें। मैंने देखा है एक मर्द जब एक औरत जब शादी करवा के आती है ना, तो मर्द उसको भला क्या कहता है? तुम्हें ये नहीं पसंद, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ग्लास सीधा पसंद है, मुझे कप के किनारे गंदे नहीं पसंद है, मुझे रोटी को पूरा कवर होना अच्छा लगता है कि वो ऐसे हो। कभी औरत से पूछा है कि इसको क्या पसंद है? कभी औरत से पूछा है कि इसको क्या पसंद है? कभी पूछा है? नहीं पूछा। आप उसको एक दिन में पता नहीं अपनी कितनी पसंद या नापसंद बताते हैं। मुझे ये वाली शर्ट आज नहीं थी, मैंने पहनी, मैंने दूसरी पहननी थी, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे खाने में थोड़ा सूप ज्यादा पसंद है, मुझे खुश्क सालन पसंद है, मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है। सुबह से पसंद की ख्वाहिश शुरू होती है और आखिर तक मुझे बिस्तर में जब बिस्तर लगते हैं तो मुझे इस तरह से तय किया बिस्तर पसंद है। जी आप मुत्तफिक हैं? सुबह से ये काम शुरू होता है, मुझे इस तरह से नहीं पसंद, मुझे इस तरह से नहीं पसंद, आपकी ये चीज मुझे नहीं पसंद, आप बिल्कुल अपनी अम्मी की तरह हो, आप ऐसी हो, आप ऐसी हो। क्या उसने अगर वो कभी कहते ना तुझे भी बिल्कुल अपने बेवर गए हो, तो कहता हाँ कि ज़बान दराज है, माँ करो ऐसे कभी आई है, तेरी माँ ने तेन ऐसा आया है। आप अब मुझे पहले एक बात बताएं,
औरत की, इधर से पहले औरतों से पूछते हैं जी, आपके कितने बाजू हैं? टांगे, आंखें, नाक, दिमाग, हाथ, इतने ही हैं सबके? इधर भी सबके इतने ही है ना? क्या आप जज्बात नहीं रखती? क्या आपकी कोई मर्जी नहीं है? क्या आपका दिल नहीं है? क्या आपका दिमाग नहीं है? मैं कहती हूँ, मैं इस बात पे, आप मेरे साथ मुत्तफिक हो या ना हो, मैं कहती हूँ औरत सलूटेड है कि वो कलाम को मद्देनजर रखती है, आपके ताबे होती है। जब शोहर उसको मार रहा होता है, क्या वो आगे से नहीं मार सकती? खुदा ने उसको हाथ नहीं मारने के लिए दिए, आपको ठुड्डे दिए, उसको ठुड्डे नहीं दिए हुए? दिए है ना? आपको इतनी लंबी जुबान गालियों वाली दी है, उसको नहीं दी हुई? दी हुई है। लेकिन औरत जो है वो इसलिए सलूटेड है कि जज्बात भी रखती है, दिमाग भी रखती है, दिल भी रखती है, 2 हाथ भी रख रही है, 2 पाँव भी रख रही है, सब कुछ कर रही है। और सबसे बड़ा खुदा ने इसको बरकत दी है कि ये जिंदगी से जिंदगी को तख्लीक करती है। लेकिन फिर भी वो आपके ताबे है, फिर भी वो आपकी बात मानती है। वो उस बात में मुत्तफिक हो या ना हो, वो फिर भी आपकी बात मान रही है। कुछ लोग कहते हैं जी औरत जो है ये जरूरत के तहत बनाएंगे। पहले आदम बनाया गया और आदम को जब देखा गया कि वो अकेला है, उसके साथ का उसको कोई नहीं मिल रहा, उसका साथी कोई नहीं है, तो ये जरूरत के तहत बनाई गई। अगर ये जरूरत के तहत बनाई गई है, जो चीज जरूरत के तहत हो, मैं कहती हूँ उसकी कदर ज्यादा होनी चाहिए। हेलो, अगर बुरा लगा तो मैं सॉरी नहीं कहूँगी जी। अगर ये जरूरत के तहत बनाई गई है तो क्या इसकी कदर ज्यादा नहीं होनी चाहिए? ये आपको एंटरटेन करने के लिए, आपकी मदद के लिए बनाई गई है, या आपका हाथ थामने के लिए बनाई गई है, या आपके साथ लेटने के लिए बनाई गई है, ये आपका दुख सुख बांटने के लिए बनाई गई है। एक दिन एक शख्स जी आके बात कर रहा है, उसकी बीवी उसके साथ थी, कहता है जी है ये शुक्र है तो और चंगी गल की थी। मैंने इसको फौरन कहा, मैंने कहा भाई जी आपकी सैलरी जितनी भी है, 5000 कपड़े धोने के, 5000 इस्त्री करने के, 5000 खाने के, ठीक है, 5000 बच्चों को लुक आफ्टर करने के, ठीक है, 5000 सफाई के, तो कितने बने जी? कितने बने? 25,000। यानी वो घर बैठे 25,000 का काम कर रही है। और सबसे बढ़कर जो वो आपके लिए काम कर रही है, उसने आपको औलाद दी है, उसने आपकी नस्ल को आगे बढ़ाया है। क्या जिसने आपकी नस्ल को आगे बढ़ाया है, क्या वो काबिल इज्जत नहीं? मैं कहती हूँ वो इज्जत के, बहुत इज्जत के लायक है। और यीशु मसीह ने भी इसको जा बजा इज्जत दी है, और एक शोहर होते हुए हमें भी इसको इज्जत देने की जरूरत है। फिर हमेशा मर्दों के खुसूसन इस चीज पर आए थे, अल्लाह तू मेरी मां रोटी पूछिया, तू मेरी मां नु टाइम ते रोटी नहीं दी, तू मेरे प्यो नु टाइम ते रोटी नहीं दी। भाई जिसकी आप बेइज्जती कर रहे हैं वो भी किसी की मां नहीं है। क्या वो आपके बच्चों की मां नहीं है? वो आपके बच्चों की मां है। आपकी मां ने आपको लुक आफ्टर किया है, वो आपके बच्चों को लुक आफ्टर कर। आपकी मां ने आपको खानदान में बड़ा किया, खानदान बनाया है आपके साथ मिल, आपके शोहर के, अपने शोहर के साथ मिलकर, वो आपके साथ मिलकर खानदान बना रहे। इसलिए उसको भी इतनी इज्जत दें, उसको भी इतनी रिस्पेक्ट दें। और कुछ मर्दों की एक होती है कि जी मेरी बीवी बड़ी सुस्त है। क्या उस सुस्त ने आपके बच्चे पैदा नहीं किए? वो चाहे सुस्त है, थोड़ा काम लेट करती है, 3 टाइम खाना आपको वही बना के दे देती है। वो आपके सारे घर को मैनेज कर रही है, किसी ना किसी तरीके से तो कर रही है कि नहीं कर रही? मुश्किल में हो रही है, आसान में हो रही है, स्पीड को थोड़ा सा तेज कर रही है, लेकिन वो कोशिश कर रही है कि वो आपको 3, 4, 5, 6, 7 2 बच्चों को संभाले, और वो संभाल रही होती है। ये दूसरे दर्जे की मखलूक। फिर जी वो एक रेफरेंस है, जब आदम और हव्वा ने गुनाह किया, तो एक रेफरेंस है पैदाइश की किताब का, उसमें लिखा हुआ है कि वो तुझ पर हुकूमत करेगा।
तेरी रग़बत तेरे शोहर की तरफ होगी और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। औरत के बारे में लिखा हुआ है कि मर्द उस पर क्या करेगा जी? हुकूमत करेगा। क्या हुकूमत का मतलब यही होता है कि रियाया को तांगी रखना, जैसे अब हो रहा है? क्या हुकूमत, चलिए हुकूमत ही को ले ले, क्या हुकूमत का मतलब ये होता है कि रियाया को तंग रखना, कि रियाया को खुशहाल रखना? जी लिखा हुआ है, फिर उसने औरत से कहा कि मैं तेरे दर्द हमल को बहुत बढ़ाऊंगा, तू दर्द के साथ बच्चे चलेगी और तेरी रग़बत अपने शोहर की तरफ होगी और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। एक और रेफरेंस देखेंगे मेरे साथ, मलाकी की किताब जी, उसका दूसरा बाब, उसकी 13वीं आयत से मैं आपके लिए जी गौर से सुनिएगा। फिर तुम्हारे अमाल के सबब से खुदावन के मस्बा पर आहो नाला और आंसुओं की ऐसी कसरत है कि वो ना तुम्हारे हदिया को देखेगा और ना तुम्हारे हाथ की नज़र को खुशी से कबूल करेगा। तो भी तुम कहते हो कि क्या सबब है? सबब ये है कि खुदावन तेरे और तेरी जवानी की बीवी के दरमियान गवाह है, तूने उससे बेवफाई की है, अगरचे वो तेरी रफ़ीक और मनकूहा बीवी है। और क्या उसने एक ही को पैदा नहीं किया, बावजूद के उसके पास और अरवा मौजूद थी। फिर क्यों एक ही को पैदा किया? इसलिए कि खुदा तरस नस्ल पैदा हो। बस तुम अपने नफ्स से खबरदार रहो और कोई अपनी जवानी की बीवी से बेवफाई ना करे, क्योंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा फरमाता है, मैं तलाक से बेजार हूँ और इससे भी जो अपनी बीवी पर जुल्म करते हैं। खुदावंद के मस्बा पर आहो नाला की कसरत है, खुदावंद के मस्बा पर आंसुओं की कसरत है। ये आंसू, ये आहो नाला आपकी बीवियों के। और खुदावंद कह रहा है, मैं तेरी हदिये को कबूल नहीं करूंगा, मैं तेरी नजरों को कबूल नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मैं कहती हो सकता है आप उसका तलाक ना दे। मैं कहती जब किसी की तलाक हो जाती, तलाक से तो बंदा छूट जाता है, आज़ाद हो जाता है। लेकिन बाज लोग होते हैं कि वो एक घर में रहते हुए जंग का महाज कायम रखते हैं, एक बेड पर सोते हैं लेकिन जंग का महाज कायम रहता है। सुबह से शाम तक जंग ही चलती रहती है, जंग ही चलती रहती है। और कहा जाता है औरत को जी एडजस्ट करना, आप एडजस्ट करो, आप एडजस्ट करो। बेटा शराब पीने वाला है, कमाई नहीं करता, जिसकी शादी कर दो ठीक हो जाएगा, ताकि आने वाली को वक्त डालते रहे। जो हमने पिछले दिनों में एक पोस्ट शेयर की थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी कि जब किसी औरत को तलाक होती है तो क्या कहा जाता है? अच्छी नसी है, किसी ने खराब ज़बान दराज बड़ी सी, एनु घर दे कम नसी आते हैं, मेरी माँ की इज्जत नसी करती है, एंज करती। मैं कहती हूँ जब तलाक दी जाती तो मर्द कभी नहीं, औरत पर ढेरों इल्जाम लगाए जाते हैं, ये ऐसी थी, ये वैसी थी, ये करती थी, वो करती थी। तो उस पोस्ट में आगे ये था कि कभी किसी ने ये कहा कि वो बड़ी सलीकामंद थी, उसको रोज मार खाना पसंद नहीं था, उसने इसलिए तलाक लिया क्योंकि वो रोज मार नहीं थी खा सकती। उसके बाप ने कभी गाली नहीं थी दी, उसको गाली गलोच नहीं पसंद था, इसलिए उसने तलाक दी है या उसको तलाक दी गई है। हमेशा जब भी तलाक होती है औरत को जिम्मेदार ठहरा जाता है, जी ये ऐसी है। हो सकता है वो बहुत नफीस हो सकता है वो अपनी जिंदगी को एंजॉय करना चाहिए। अगर आपको एक दफ़ा मिलती है तो औरतों को भी एक ही दफ़ा मिलती है, और इसमें सारी जिंदगी एडजस्ट के नाम पे गुजरती है। और आखिर में ऐसे होता है कि माई बाबा जो होते हैं वो अलग-अलग सोए होते हैं, चारपाइयों के फासला जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जब मर्द में कुव्वत होती है तब औरत जो है वो उसको पूरा फॉलो करती है, चाहे वो उसको रोज़ मारना हो। लेकिन एक वक्त होता है वो उसको संभालेगी ज़रूर, लेकिन उसके जहन में ज़रूर आएगा कि इसने मुझे किस तरह से मारा हुआ, इसने मुझे किस तरह से जलील किया, इसने मेरा क्या हाल किया था, मैं किन क्राइसिस से गुजरी हूँ। मैं तब प्रेग्नेंट थी, तब मेरे साथ ये वाक़या हुआ था, तब अभी मेरे सजेरियन नहीं हुआ था जब मेरे साथ ये वाला वाक़या हुआ था। तब मुझे मेरे शौहर ने ये कहा था, मुझे अपनी फैमिली से ये मसला हुआ था। मैं कहती एक औरत को फैमिली से कोई कुछ नहीं कह सकता अगर मर्द उसके साथ है, और अगर कहे भी तो मैं कहती मर्द को ठीक है रोज़ लड़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसको तसल्ली ज़रूर देनी चाहिए, उसको तसल्ली की ज़रूरत है।
وہ جب اپنے گھر سے بیاہ کے آتی ہے تو اس ماحول کے لیے تیار ہو کے نہیں آتی کہ اس کے ساتھ اس طرح سے سلوک کیا جائے, اس کو اس طرح سے ٹریٹ کیا جائے. اس کے ماں باپ اس کو کھانا پکانا سکھاتے ہیں, سب کچھ سکھاتے ہیں, گھر کے کام کاج سکھائے جاتے ہیں, یونیورسٹی کی فیس تک دیتے ہیں, اور پھر جہیز کے ٹرک بھی لے کے آتی ہے. جب وہ پہلے 2 سال میں ہوتی ہے تب وہ کرائسس سے گزر رہی ہوتی ہے مسلسل. اگر وہ گزر رہی ہے تو سہارا دینا آپ کا کام ہے, جذباتی طور پر اس کو محفوظ کرنا آپ کا کام ہے. آپ کے جذبات ہیں, اس کے بھی جذبات ہیں, آپ اس کو دلاسا دے سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ اس کے لیے اپنے گھر میں روز لڑائی کریں, لڑائی چاہے نہ کریں, لیکن اس کو کم از کم دلاسا تو دیں, اس کو کمرے میں لے کے جائیں, اس کو چپ کروائیں, اس کا ساتھ دیں. ہو سکتا ہے وہ بڑی لاڈلی ہو اپنے گھر کی, اور آتے ہی ادھر اس کو مشکلات کا سامنا ہو. اس لیے عورت کی عزت کریں, عورت کا ساتھ دیں. کہتے ہیں وجود زن سے ہے کائنات میں رونا. ہاں گھر تو ہوتا ہے, ہاں جسم تو ہوتا ہے, لیکن جان نہیں ہوتی. وہ گھر ہی کیا جس میں ماں نہیں. یہ رونق ہے آپ کی گھر کی, یہ عزت ہے آپ کی. اگر خدا نے آپ کو بیٹی دی ہے تو آپ اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتے ہیں. جو آپ کے پاس رہتی ہے, جو آپ کے ساتھ ہوتی ہے, وہ بھی کسی کی بیٹی, وہ بھی کسی کی عزت ہے. اس کو بھی کسی نے بڑے پیار سے پالا ہوگا. اس کی عزت کرے, اس کا ساتھ دے, ہر لحاظ سے اس کا ساتھ دے, ہر لحاظ سے اس کی قدر کریں. آپ گھر آ جاتے ہیں تو آپ کا یہ نہیں ہے کہ آپ موبائل پہ لگے. آپ کوشش کریں کہ اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے گھر کے کام کریں. آپ کوشش کریں کہ اس کے ساتھ بچوں کو سنبھالیں. جب مرد یہ کہتے ہیں نا, میں کہتی ہوں, وہ کہا جاتا ہے بچہ روٹی نہیں کھاتا, پتہ کتنی غلطی ہے ماں دی. بچہ دودھ نہیں نہ پیندا, ماں دی غلطی ہے. بچہ چنگا پڑھتا نہیں نہ, ماں دی غلطی ہے. بچہ سوندا نہیں چھتی ہے, ماں دی غلطی ہے. بچہ اے نہیں کرتا ہے, ماں دی غلطی ہے. بچہ اے نہیں کرتا, وہ ماں دی غلطی ہے. اتی عورت جو بچے پیدا نہیں کرتی ہے, بھی ان کی غلطی ہے. تب اس کو طلاق دے دی جاتی ہے, تب اس کو باہر افیئر بنائے جاتے ہیں. ایسے تو میرے اولاد نہیں ہوگی. اور جب اولاد ہو جاتی ہے تب سو باتیں ہوتی ہیں. ادھر آؤ, اس نے یہ نہیں کیا, ادھر آؤ, اس نے یہ نہیں کیا, ادھر دیکھو یہ نہیں کیا اس نے, یہ کار ہی نہیں رہا, یہ کار ہی نہیں رہی. آپ کرواتی ہی نہیں ہو. میں تو یہاں گیا ہوا تھا, میں تو وہاں گیا ہوا تھا, آپ نے کروایا ہی نہیں. بھائی عورت کو میں کبھی کبھی یہ میں کہتی ہوں, آپ میرے ساتھ متفق ہو کہ کیا عورت یہ سمجھے کہ میں نے بچوں کو پیدا کر لیا, یہی بڑی غلطی ہے, سب سے بڑی. ساتھ دیں اس کا دھیان رکھیں, اس کی صحت کا خیال رکھیں. اسے پوچھیں کہ اگر آج میں سارا دن ڈیوٹی سے باہر رہا ہوں, بچوں نے آپ کو تنگ کیا ہوگا کہ آپ نے کھانا کھایا ہے پراپر, کیا آپ اپنی صحت کا خیال رکھا ہے. اگر وہ اس کی صحت اچھی ہوگی, ارسطو کے افلاطون, وہ کہتا مجھے اچھی مائیں دو, میں تمہیں اچھی قوم دوں گا. اور اچھی مائیں پتہ کب بنتی ہیں, جب وہ اچھی بیوی ہوتی ہیں, اس کا شوہر اس کو سپورٹ کرنے والا ہوتا ہے, اس کا شوہر اس کا ساتھ دینے والا ہوتا ہے. کبھی اس کے ساتھ کچن میں بھی کھڑا ہوا ہے, کبھی اس کے ساتھ تھوڑا سا کام کروایا کریں. کبھی وہ چھت پہ کپڑے پھیلانے جائے تو اس کو کہا کریں میں بھی آپ کی مدد کر دوں. کچھ بھی نہیں ہوگا, آپ چھوٹے نہیں ہوں گے. انسان کاموں سے کبھی چھوٹا نہیں ہوتا, انسان اپنے ذہن سے چھوٹا ہوتا ہے, انسان اپنی سوچ سے چھوٹا ہوتا ہے. اس لیے اس کو دوسرے درجے کا کہنا چھوڑ دیں, کیونکہ یسوع نے اس کی پستہ حالی پہ نظر کی. میں کہتی جب اس نے کہا نا اس نے میری پستہ حالی پہ نظر کی, تو یہ صرف مریم کی پستہ حالی پہ نظر نہیں ہوئی, یہ تمام عورتوں کی پستہ حالی پہ نظر ہوئی. اب سے لے کر سب جو مبارک ہیں, وہ صرف مقدسہ مریم کو مبارک نہیں کہیں گے, ان سب کو مبارک کہیں گے جو یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں, جو یسوع مسیح کے گھر کی فرد ہے, جو یسوع مسیح کی شہزادی ہے. انسٹمل یہی کہتا ہے نا, یسوع کی شہزادی ہے کرنا الفت. وہ جو شہزادی ہے, وہ جو آپ کی ملکہ ہے,
وہ جو اپنے باپ کی راج دلاری ہے اس کی عزت کریں, اس سے پیار کریں. آپ اس کو کپڑے لا کے دے دیں, شاید اس کو اتنی خوشی نہیں, آپ اس کے جذبات کا دھیان رکھیں گے, اس کو بہت خوشی ہوگی. کبھی کبھی اس کو سرپرائز کریا کریں, اس کو پھول لا کے دیا کریں, اس کے لیے چھوٹا سا گفٹ لایا کریں, اس کو بہت اچھا لگے. اس کے لیے چاکلیٹ لے کے آئیں, اس کو کچھ ایسا دیں کہ اس کے سارے دن کی تھکان ختم ہو جائے, وہ اچھا فیل کرے. اسی کے ساتھ ہم اپنے سر کو چھپائیں. جو کپل ہیں وہ کپل ساتھ ساتھ ہو جائیں, جو کپلز ہیں وہ ساتھ ہوں گے.